ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اس وقت گھر میں اکیلی تھی جب سلیم ایک دم سے گھر میں آ دھمکا اور اتنی زور سے میری کلائی دبوچی کہ میری دبی دبی سسکیاں نکل گئیں۔ امی ابھی بھی کچن کا ضروری سامان لینے کے لیے یوٹیلیٹی سٹور کی طرف نکلی تھیں۔ امی کی یہ ہمیشہ سے عادت تھی کہ جو ہی ابو کی پینشن آتی وہ فوراً مہینے کے شروع میں ہی گھر کا ضروری راشن لینے یوٹیلیٹی سٹور پر پہنچ جاتی، جو کہ مین بازار میں تھا، اور پھر پورا مہینہ اس راشن کو بہت ہی کفایت شعاری سے استعمال کرتی۔ کچن کا سارا نظام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر رکھا تھا۔ جس دن میں کچن میں چلی جاتی اور کھانا پکاتے ہوئے کوئی اضافی سالن بنا دیتی تو وہ بہت خفا ہوتی کہ ایک وقت میں 2 سالن بنانے کا کیا مقصد ہے۔ یوں ہی چلتا رہا تو پھر گھر چلانا مجھ اکیلی بندی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں ان کی اس عادت سے بہت چڑھتی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنی جگہ پر بالکل درست تھیں، کیونکہ ابو کی فوتگی کے بعد امی نے جس طریقے سے گھر کے نظام کو چلایا وہ ان کے ہی بس کی بات تھی۔ اگر یہ میرے ہاتھ تک ہوتا تو میں تو شاید سارا دن روتی ہی رہتی کہ اتنی محدود رقم سے بھلا گھر کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ اور یہ کرامات صرف امی کے ہاتھ میں تھی کہ وہ جو چیز لاتی بسم اللہ کر کے کھلتی، اور اس میں اللہ اتنی برکت ڈال دیتا کہ پورا مہینہ نمک مسالوں سے لے کر دالوں تک ہر چیز چلتے ہی چلی جاتی۔ ہم گھر میں 2 ہی افراد تھے، میں اور امی۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہمارے گھر میں ننیال ددیال کی طرف سے کوئی نہ کوئی مہمان بھی آ جاتا تو اسی راشن میں سے ان کے لیے بھی امی اچھی سے اچھی چیز بنا کر سامنے رکھ دیتی، کیونکہ ان کے خیال میں مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اسی لیے خندہ پیشانی کے ساتھ پکا کر سامنے رکھنا چاہیے۔ تو مجھے کبھی کبھی امی کی ان باتوں سے بڑی کوفت ہوتی کہ مہمانوں کے لیے تو آپ فوراً فریج میں رکھا ہوا گوشت نکال کر پکا لیتی ہیں، لیکن جب ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس طرف توجہ نہیں دیتی۔ تو امی میری اس بات پر کبھی ناراض ہو جاتی اور کبھی مسکرا کر کہتی کہ اللہ ہمیں بھی گوشت کھانے کی توفیق دیتا ہے، لیکن مہمان کبھی کبھی ہمارے دروازے اندر آتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ ہم ان کے آگے دال ساگ رکھ دیں، اس لیے اچھا سوچا کرو۔ تو میں خاموش ہو جاتی۔ 1 تاریخ کو ابو کی پینشن مل جاتی تھی، اسی لیے امی آج صبح گھر کا راشن لینے کے لیے بازار چلی گئی۔ گھر کا سارا کام پڑا ہوا تھا اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر کام کروں۔ ویسے تو گھر کا کام امی ہی کرتی تھیں، میں شاذ و نادر کسی کام کو ہاتھ لگاتی، لیکن آج صبح ان کے بازار جانے پر گھر کا سارا کام میرے سر پر آن پڑا تو میں کسل مندی سے اٹھ کر کمرے سے جھاڑو لگانے لگی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اوہو، امی میرے خیال میں اپنا شناختی کارڈ بھول گئی ہیں۔ مجھے خیال آیا، اتنے میں دستک پھر تیزی سے ہوئی تو میں دوڑ کر بنا دوپٹے ہی گیٹ کی طرف بھاگی اور دروازہ کھول دیا۔ جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے چچا کا بیٹا سلیم کھڑا تھا، جو مجھے حد سے زیادہ برا لگتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے دروازے میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میں دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور دروازہ اس کے پاؤں کی وجہ سے بند ہونا ناممکن ہو رہا تھا۔ اتنے میں اس نے ایک زوردار دھکا لگایا اور دروازہ پورا کا پورا کھل گیا۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی تو وہ اندر آ گیا اور اپنے پیچھے اس نے دروازے کو لات مار کر بند کیا اور مجھ پر اپنی دہکتی نظریں جمائے کنڈی لگا دی۔ میں اس کی اس حرکت پر سٹ پٹا گئی اور غصے سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی تو تم کر رہی ہو، میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میری کلائی اپنے مضبوط ہاتھوں میں اتنی زور سے پکڑی کہ میری دبی دبی سسکیاں نکلنے لگیں۔ وہ تھوڑی دیر تک مجھے تڑپتا دیکھتا رہا، پھر میری کلائی آزاد کر دی۔ میں اپنی کلائی تھامے اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگی۔ امی گھر نہیں ہیں، میں منہ پھلائے ہوئے بولی۔ جب وہ ہوں گی تو پھر آنا۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں امی سے ملنے نہیں، تم سے ملنے آیا ہوں۔ وہ لفظ چبا کر بولا تو میں اسے خاطر میں لائے بغیر بولی، تو امی کے سامنے ملنے کے لیے آیا کرو نا، کم از کم اتنی جرت تو تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ مجھ میں تو بہت جرت ہے، میں ان کے سامنے بھی آ سکتا ہوں، بھلا مجھے کون روکے گا؟ ہاں، تم تو ہمارے خاندان کے بہت بڑے ڈان ہو نا، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ میں نے اسے طنزیہ کہا کیونکہ وہ ایک باڈی بلڈر تھا اور اپنا زیادہ تر وقت جم میں گزارتا تھا، لیکن وہ ابھی تک بے روزگار تھا۔ چچا کی کچھ دکانیں کرائے پر لگی ہوئی تھیں جن سے کرایہ آتا رہتا تھا۔ یہ بھی ہمارے گھر کی طرح بس 2 ہی افراد تھے،
लेकिन उनके हालात हमसे कदरे बेहतर थे, क्योंकि चचा रिटायरमेंट के बाद भी अपना कारोबार कर रहे थे और सलीम पर नौकरी करने का बोझ घर वालों ने कभी डाला ही नहीं था, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था और उन्होंने बड़े ही नाजो नाम के साथ उसकी परवरिश की थी। यही वजह थी कि वो हड हराम हो गया था और जॉब करना पसंद नहीं करता था। उसकी बजाय वो अपनी बॉडी बनाने पर ज़्यादा वक्त सर्फ करता था। दूसरी तरफ उसकी निगाह मुझ पर जमी रहती। वो मुझे अपनी बचपन की मंग कहता था। हालांकि हमारी बचपन में कोई मंगनी नहीं हुई थी, लेकिन बड़ों ने उसके दिमाग में ये बात डाल रखी थी कि नायला तो हमारे सलीम की मंगेतर है और हमारी बहू है। पूरे ख़ानदान में उन्होंने ये बात फैलाई हुई थी, जबकि इस बात का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं था। शायद बचपन से सुन सुनकर मुझे सलीम के नाम से चिढ़ हो गई थी। ख़ानदान में अगर कोई मेरी कज़न मुझे सलीम के नाम से छेड़ती तो मैं फ़ौरन खफा हो जाती और उनके मुंह पर ही साफ साफ कह देती कि ना तो मेरे अम्मी अब्बा ने हामी भरी है और ना ही मुझे सलीम का रिश्ता कबूल है। ये सब उनके जहनों की खराफात हैं, लिहाजा हमारे सामने उनका नाम ना लिया करो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी ये बातें ख़ानदान में लड़कियां जब सुनती तो किसी न किसी तरह जेलसी में या खुशी में चचा चची के घर पहुंचा देती। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें यह पता चलना शुरू हो गया कि मैं सलीम के रिश्ते से खुश नहीं हूँ और ना ही उसे पसंद करती हूँ, तो उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो कई बार अम्मी से आकर लड़े भी, लेकिन अम्मी इसलिए चुप कर जाती कि मेरे सर पर बाप का साया नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि ख़ानदान में अपने इतने करीबी और खूनी रिश्तों के साथ बिगाड़ कर वक्त गुजारा जाए। मैं अम्मी की इन हिकमतें अम्मियों पर बेतहाशा खफा होती थी कि आप मुंह पर इनकार करना कब सीखेंगी, तो अम्मी उल्टा मुझ पर खफा होती और मुझे अक्सर नाराज़गी से कहती कि आखिर तुम चाहती क्या हो? घर का रिश्ता है, अगर घर में ही हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? तो मैं अम्मी की बात सुनकर गुस्से में आ जाती और उनसे लड़ पड़ती। आपको मेरे लिए सलीम ही मिला है, हड हराम दुनिया जहान का, बाप की आमदनी पर बैठा हुआ ऐश कर रहा है। ये भी कोई ज़िंदगी है अम्मी? क्या लड़के इसी तरह होते हैं? जो अभी से अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता वो कल मेरी जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है? मैं क्या चचा के आगे हाथ फैलाती रहूँगी अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए? ना अम्मी, मुझसे तो आप ये उम्मीद ना रखें। हमारे घर के हालात से ज़रा अच्छे उनके हालात हैं। मैं तो ऐसे घर में मरकर भी ना जाऊं। तो अम्मी मेरी बातें सुनकर हक्का बक्का रह जाती। तो तुम आखिर चाहती क्या हो नायला? मैं ये चाहती हूँ कि जिस घर में ब्याह कर जाऊँ वहाँ नौकर चाकर हों, बड़ा सा घर हो, मेरे होने वाला शौहर बिजनेसमैन हो, मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना ना पड़े, मैं जो चाहूँ मुझे उसी वक्त मिल जाए। इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखते नायला, अपनी चादर देखकर बात करनी चाहिए। कब तक आप मुझे ये डरावे देती रहेंगी? क्या हम छोटे घर की लड़कियां ख्वाब भी बड़े नहीं देख सकती? आप क्या चाहती हैं अम्मी? सारी ज़िंदगी मैं ये बर्तन मांझ मांझ कर अपनी ज़िंदगी गुजार दूं, जैसे आपने गुजार दी, जैसे और ख़ानदान की ख़वातीन ने गुजार दी? क्या हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को अमीर घराना नहीं मिल सकता? तो अम्मी मेरी बात सुनकर परेशान हो जाती। नायला, अमीर घरानों में रिश्ते तो हो जाते हैं, लेकिन फिर सारी ज़िंदगी एक गरीब लड़की उनमें एडजस्ट होने के लिए तगोदो करती रहती है। उनकी और हमारे स्टेटस में बहुत फ़र्क होता है बेटा, और ये फ़र्क सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो पाता। तुम ऐसी ज़िंदगी का चुनाव क्यों करना चाहती हो जिसमें सारी ज़िंदगी तुम्हें अपना आप मिटा कर जीना पड़े? अगर मुझे अपना आप मिटा कर ही जीना पड़ेगा तो मुझे फिर भी कबूल है अम्मी। मैं ये झाड़ू पोंछे और बर्तन धोने वाली ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैं चाहती हूँ मैं पूरी दुनिया घूमूँ, बड़ी सी गाड़ी में शॉपिंग करने जाऊँ और इतनी शॉपिंग करूँ कि सब कुछ उठाकर घर ले आऊँ। और आप अपनी इतनी ख्वाहिशों से भरी बेटी को इस घर में ब्याहना चाहती हैं जहाँ दूसरी बार सालन देने में चच्ची के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। सारी ज़िंदगी चच्ची पैसे जोड़ जोड़ कर ऊपर वाले पोर्शन में सिर्फ 2 कमरे ही बना सकी। कभी मैंने उन्हें नए कपड़े और जूते पहने हुए तो नहीं देखा। आपका क्या ख्याल है कि वो मेरे कपड़ों जूतों पर खुश होंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता अम्मी। मैं यहाँ अपने घर में महीने में फिर 1 आध जोड़ा सिलवा कर पहन लेती हूँ, लेकिन चच्ची के घर में तो मुझे लगता है कि नए कपड़े भी मेरे लिए ख्वाबो ख्याल बन जाएंगे। अम्मी, क्यों आप मुझ पर जुल्म ढाना चाहती हैं? आप चच्ची की फितरत से अच्छी तरह आगाह नहीं हैं क्या? किस कदर कंजूस औरत है। हालांकि अल्लाह का कितना फजल है उनके घर पर, लेकिन कभी उनके घर खाने पर चले जाओ तो दाल में भी इतना पानी डालती हैं कि ढूंढने से भी दाल नहीं मिलती।
अम्मी मेरी बातें सुनकर एक ठंडी सांस भरती और खामोश हो जाती। वो अच्छे से जानती थी कि मुझसे वो बहस कभी भी जीत नहीं पाएंगी। खासकर चचा की फैमिली पर होने वाली बहस में तो वो अक्सर 2-4 बातें सुनने और सुनाने के बाद खामोशी हो जाती। लेकिन मेरे अंदर एक जंग छिड़ जाती। अभी कुछ दिन पहले ही चचा और चची दोनों सलीम के हवाले से अम्मी से बात करने के लिए आए थे, तो अम्मी ने खामोशी ही इख्तियार कर ली और कहा कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, मैं नायला से पूछ कर ही आपको बताऊंगी। तो चचा अम्मी पर गुस्सा होने लगे। भाभी, आपने कौन सा तरीका पकड़ रखा है? हमारे ख़ानदान में इससे पहले कब लड़कियों से पूछकर रिश्ता किया जाता है, जो आप ये नई रीत डाल रही हैं? तो अम्मी ने आहिस्ता आवाज़ में कहा कि मेरी एक ही बेटी है और आप तो जानते हैं सलीम की तरह मैंने भी बड़े ही नाजों के साथ उसको पाला है। अब जाहिर है मैं उसकी मर्ज़ी कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत मालूम करूँगी ना। अम्मी बात करते करते फिर से डंडी मार गईं, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो एकदम से चच्ची बोली कि सीधी तरह क्यों नहीं जवाब दे देती भाभी? हमें अच्छे से पता है कि नायला हर आए गए के सामने इनकार करती फिर रही है। वो अच्छा नहीं कर रही, बहुत ज़बान दराज है, उसे ज़रा लगाम डाल कर रखें। लड़कियों को ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। ये बड़ों के फैसले हैं तो बड़ों को ही करने चाहिए। उसका क्या हक बनता है कि ये इनकार करे? चच्ची की बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई और मैं फ़ौरन अंदर कमरे में आई और उनसे कहा कि जब शादी मेरी हो रही है तो हक भी मेरा ही बनता है बात करने का। चच्ची, जब मुझे ये रिश्ता मंजूर ही नहीं तो फिर आप लोग क्यों बार बार आ जाते हैं? मेरी दीदा दलेरी देखकर चचा और चची दोनों हक्का बक्का रह गए और फिर उन्होंने अम्मी को सर ता पैर घूरा, जैसे नज़रों ही नज़रों में कह रहे हों कि अच्छा ये है तुम्हारी तरबियत कि अब तुम्हारी बेटी हमारे आगे खुद ही इनकार करने आ खड़ी हुई है। अम्मी उनकी नज़रों की ताब ना ला सकीं और फ़ौरन मुझे डांटते हुए उठ खड़ी हुई। ये क्या बदतमीज़ी है नायला, तुम बाहर जाओ। तुम्हें किसने कहा है कि बड़ों के दरमियान आकर बात करो? क्यों अम्मी, मैं क्यों ना बात करूं? जब ये मामला मेरा है तो मुझे ही बात करनी है ना। आप तो हमेशा मसलहत की ज़बान बोलती हैं, ना हाँ करती हैं ना करती हैं। मुझे पता है एक दिन आपने हाँ करके मुझे मजबूर कर देना है, लेकिन ज़िंदगी मेरी है, मैं कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करूँगी। मैं मर तो जाऊँगी लेकिन सलीम से शादी नहीं करूँगी। और ये बात करके मैं वहाँ रुकी नहीं, बल्कि पैर पटकते हुए अपने कमरे में आई और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। बंद दरवाजे में से भी चचा और चची की चिंगाड़ती हुई आवाज़ अम्मी के ऊपर मुझे बाकायदा सुनाई दे रही थी और अम्मी की मिनमिनाती हुई आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती रहीं। तो मुझे रह रहकर अम्मी पर गुस्सा आने लगा। आखिर किस लिए ये उनसे इतना डरती हैं, क्यों दबती हैं? उन्होंने तो कभी भी हमें बोरी आटे की लाकर नहीं दी। अबू के मरने के बाद जो है जैसा है हम खुद ही अपने लिए पूरा करते हैं। उन्होंने तो कभी हमारे सर पर हाथ नहीं रखा, कभी भी हमें सपोर्ट नहीं किया। मैं गुस्से से भरी हुई कमरे में टहलती जा रही थी कि उनके जाने के बाद अम्मी किसी आंधी तूफान की तरह मेरे कमरे में आई और गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी। तो मैं भी उठकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अम्मी कुछ भी कहने से पहले मेरी बात ज़रा ठंडे दिल से सुन लें। चचा और चची मुझसे अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहते, बल्कि ये जो घर आप देख रही हैं ना, इस घर पर उनकी नज़र है। जाहिर है मैं इकलौती वारिस हूँ इस घर की, तो वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये 2 मंजिला घर मुझे ही मिलेगा। तो उनके तो वारे न्यारे हो गए ना अम्मी। आपको तो इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आ रही? भला चच्ची मुझे कब पसंद करती थी, लेकिन मुझे ब्याहने की आड़ में दरअसल वो ये मकान हथियाना चाहते हैं। और तो और उन्हें कुछ ज़रिया नज़र नहीं आ रहा तो रिश्ता करने के बहाने उन्हें अपना मकसद हल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अम्मी, आप अपनी अज़ली सादगी की वजह से ये बात समझने से कासिर हैं। नायला, तुम्हारी ये मंतक बिल्कुल फजूल है। उन्हें हमारे इस मकान की भला क्या ज़रूरत? वो तो ख़ुद ठीक ठाक साहिबे जायदाद लोग हैं और कभी भी उन्होंने मकान के हवाले से कोई बात नहीं की। जब भी की है तुम्हारे रिश्ते के हवाले से बात की है। तो जाहिर है अम्मी, अपने मुंह से तो वो अपना लालच बयान करने से रहे, और मैं आपकी तरह बिल्कुल भी सादी नहीं हूँ जो उनकी आंखों में लालच को ना देख सकूं। हाँ, तुम ज़रूरत से ज़्यादा सियानी हो गई हो, ये तो मैंने आज देख ही लिया कि किस तरह तुम चच्चा चच्ची के सामने बोली हो। तुम्हें ज़रा भी लिहाज नहीं आया। तो क्यों लिहाज करूं अम्मी? उन्हें लिहाज है। जब वो मेरा इनकार सुन ही चुके हैं तो फिर बार बार क्यों आ जाते हैं?
اب بس زبردستی نکاح کرنا رہ گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے جس طرح سے آپ ان کے آگے پچ جاتی ہیں، ایک دن وہ مولوی لے کر آئیں گے اور زبردستی میرا نکاح کر کے مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ اب ایسی بھی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے امی، آپ دیکھ لیجئے گا، ایسا ہی ہوگا۔ اگر آپ بر وقت نہ بولیں تو وہ ایسا ہی کریں گے۔ تو میں کیوں بر وقت بولوں؟ مجھے سلیم میں کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ گھر کا بچہ ہے، اچھا لڑکا ہے، اور کیا چاہیے؟ میں آپ سے اس سلسلے میں مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی امی، میرے سر میں درد ہے۔ تو امی ایسے مجھ پر افسوس بھری نگاہ ڈال کر خود ہی کمرے سے چلی جاتی۔ چچی کو گئے ہوئے ابھی دوسرا ہی دن تھا کہ سلیم ایک دم سے ہمارے گھر میں آ دھمکا۔ مجھے اس سے کبھی بھی ڈر نہیں لگا، لیکن نہ جانے کیوں آج میں بری طرح سے خوفزدہ ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو گھر میں امی نہیں تھیں، اور دوسرا اسے اپنی امی کے ذریعے میرا انکار سننے کو مل گیا تھا، لہٰذا اس کے تیور آج بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ یہ تم نے آخر کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا خامی ہے مجھ میں؟ وہ غصے سے غراتے ہوئے میرے قریب آیا تو میں 2 قدم پیچھے ہٹی۔ چچا کے پیسوں پر عیش کر رہے ہو اور پوچھتے ہو کہ کیا خامی ہے؟ اچھا تو یہ بات ہے۔ اس کی آنکھوں کی سختی نرمی میں بدل گئی۔ اگر میں نوکری کر لوں تو تم میری بن جاؤ گی؟ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولا۔ تو میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے پلٹ گیا۔ ایک دن میں اپنی دوست مالا کے ساتھ ونڈو شاپنگ کر رہی تھی کہ اچانک ہمارے سامنے ایک انتہائی خوبرو نوجوان 3 پیس سوٹ پہنے مسکراتے چہرے کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ مالا اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی۔ مالا نے اس نوجوان لڑکے کا تعارف مجھ سے نبیل کہہ کر کروایا اور بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ تو وہ عجیب انکساری کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولا، بس اپنی طرف سے کوشش کی ہے، بڑا تو اللہ کی ذات ہے۔ اس کی بات پر میں متاثر ہوئی۔ وہ بات تو مالا سے کر رہا تھا، لیکن مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ بات کئی بار محسوس کر چکی تھی، اسی لیے اپنی نظریں دائیں بائیں کر لیتی۔ پھر وہ ہمیں نزدیکی کیفے میں لے گیا، جہاں اس نے ہماری پسند کا کھانا منگوایا، اور پھر اپنی گاڑی میں ہمیں گھر تک چھوڑنے کے لیے بھی آیا۔ گھر آ کر بھی میں نبیل کے ہی خیالوں میں ڈوبی رہی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ مالا اور اس کی امی ایک انجان خاتون کے ساتھ ہمارے گھر آئیں، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ نبیل کی بہن ہے اور اس کا رشتہ لے کر آئی ہیں، تو میرے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ امی مالا اور اس کی والدہ کو پسند نہیں کرتی تھیں، کیونکہ یہ بہت تیز ترار اور فیشنیبل لوگ تھے، اور ان کی سورس آف انکم کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ بس اتنا پتہ تھا کہ مالا ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کام کرتی ہے۔ اس کے جدید تراش خراش کے لباس امی کو بہت برے لگتے تھے۔ ابھی بھی جب وہ ہمارے گھر دونوں ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھیں تو امی کے چہرے پر برہمی تھی، لیکن جب امی کو نبیل کی بہن نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو امی سوچ میں ڈوب گئیں۔ ان کے جانے کے بعد امی نے مجھ سے نبیل کے حوالے سے بات کی تو میں نے بتایا کہ ہم ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ملے تھے، تو وہ چپ ہو گئیں۔ لیکن 2 دن بعد نبیل اپنی بہن کے ساتھ ہمارے گھر آیا اور اس نے خود امی سے بات کی کہ آپ ہمارے حوالے سے ہر طرح کی تصدیق کروا سکتی ہیں۔ امی نے انہیں سوچنے کے لیے مہلت مانگی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ امی مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اچھا کھاتا پیتا گھرانہ ہے، تو امی نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ یہ رشتہ مالا کے توسط سے آیا ہے، نہ جانے یہ لوگ کیسے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو میں نے امی سے کہا کہ امی آپ کو تو خدا واسطے کا بیر ہے مالا کی فیملی سے، اور اب تو مالا ان کے ساتھ نہیں آئی، یہ لوگ خود آئے ہیں۔ لڑکا بھی آپ نے دیکھ لیا ہے اور اس کا بزنس بھی، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو پھر آپ کو کس بات کا خدشہ ہے؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں سلیم سے بیاہ کر لوں؟ تو کیا آپ تب مطمئن ہوں گی؟ امی میری بات سن کر پریشان ہو گئی اور انہوں نے نبیل اور اس کی بہن کو رشتے کے لیے ہاں بول دی۔ اس دن میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ چچا اور چچی کو جب میرے رشتے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت خفا ہوئے۔ سلیم نے مجھ سے کہا کہ تمہیں میری جاب سے مسئلہ تھا، اب تو میں جاب پر لگ چکا ہوں، تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ تو میں ہنس دی کہ تم جس کمپنی کے ملازم ہو ایسی کئی کمپنیوں کا مالک نبیل ہے، میں ایک مالک کو چھوڑ کر کسی ملازم سے رشتہ جوڑ لوں؟ یہ بھول کر بھی مت سوچنا، اور خبردار میرے راستے میں تم آئے۔ میری باتیں سن کر سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے مجھے کہا میں تمہارے راستے میں نہیں آ رہا، لیکن میں تمہارا راستہ ہمیشہ دیکھتا رہوں گا۔
जब कभी परेशान हो मुझे आवाज़ दे लेना। और ये कहकर वो चला गया। महीने के अंदर अंदर मेरी शादी नबील के साथ हो गई। लेकिन एक बात इंतहाई अजीब थी कि वो मेरे करीब आने की बजाय हर जुमेरात मुझे दुल्हन वाला लिबास पहनाकर बड़े बड़े होटल्स के नाइट फंक्शंस में लेकर जाता, जहाँ पर बड़े बड़े सेठ मुझे अजीबो गरीब नज़रों से देखते तो मुझे बहुत बुरा लगता। वहाँ पर सिर्फ मर्द ही मर्द होते, लेकिन उनके इर्द गिर्द घूमने वाली अजीबो गरीब लड़कियाँ होतीं जो फुल मेकअप और भड़कीले लिबासों के साथ उनसे हंस हंस कर बातें कर रही होती। ऐसे माहौल में मुझे बिल्कुल भी जाना अच्छा ना लगता, लेकिन नबील ना मानता। मुझे बहुत शर्म आती थी कि यूं दुल्हन बनकर पूरे शहर में घूमना अजीब सी बात थी। लेकिन मैंने जब भी नबील से बात की तो वो कहता कि मैं ऐसा एक ख़ास मकसद के तहत कर रहा हूँ। फिर एक रात वो बहुत खुश था। उसने बहुत पी रखी थी। मुझे डर था कि वो कहीं गिर ना जाए, लेकिन उसने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा और फिर एक बहुत बड़ी कोठी पर लाया और फिर उसके दरवाजे पर उतर कर बोला, अंदर जाओ, तुम्हारा शौहर इंतज़ार कर रहा है। मैं नबील की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। शायद उसने बहुत पी रखी थी, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा था। मैं जब ना मानी तो वो मुझे ज़बरदस्ती घसीटते हुए अंदर ले गया और जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने वही सेठ था जो मुझे उस रात घूर घूर कर देखता रहा। उसकी गंदी नज़रें तो मेरे जिस्म से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे बहुत कराहियत महसूस हुई और आज वही शख्स मेरे सामने खड़ा था। नबील जा चुका था, मुझे ऐसे मर्द के पास छोड़कर कि जिसके साथ मेरा कोई शरई ताल्लुक़ नहीं था। उस बूढ़े सेठ ने मुझे जूं ही हाथ लगाने की कोशिश की तो मैंने उसे दूर धकेल दिया। तो वो गुस्से से बोला कि तुम्हारे खामिन के साथ मेरी डील हुई है, उसका प्रोजेक्ट तभी अप्रूव होगा जब तुम मेरा दिल बहलाओगी। तो मैंने उसे कहा कि नबील ऐसा नहीं है, उसने पी रखी है, इसीलिए उसको कुछ समझ नहीं आई। तो वो हंसने लगा कि बीबी, तुम किस दुनिया से ताल्लुक़ रखती हो? नबील का तो काम ही ये है, अच्छी और ख़ूबसूरत लड़कियों को शादी के झांसे में फंसाना, लेकिन फिर उसे हाथ लगाने की इजाज़त नहीं होती। वो उन्हें लेकर हम जैसे अमीर और रईस लोगों की कोठियों पर लाता है, जहां हम उस वक्त तक अपना दिल बहलाते हैं जब तक हमारा दिल भर ना जाए, और उसके बदले में वो हमसे मोटी रकम भी लेता है और अपने बिजनेस में तरक्की भी करता है। सेठ की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं नहीं जानती थी कि नबील का असल धंधा लड़कियों से शादी करके बूढ़े सेठों की रातें रंगीन करवाना है। मुझे शदीद दुख हुआ। इससे पहले कि मेरी इज़्ज़त नीलाम हो जाती, मैं वहाँ से भागकर किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुँची और नबील के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाई, और फिर मुझे पुलिस वालों ने एक NGO के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि मुझे जान का ख़तरा था। मेरा केस भी उसी NGO ने लड़ा, क्योंकि इतने बड़े गैंग से टक्कर लेना मेरे बस की बात न थी। मैं अम्मी के घर नहीं जा सकती थी, लेकिन अम्मी मुझे मिलने के लिए यहाँ आती रहती और मेरे हालात देखकर वो रो देती। नबील मेरी अम्मी से मिला और उनसे कहा कि नायला से कहें कि ये केस वापस ले ले, तो मैं बाद में उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। लेकिन अगर वो ना मानी तो वो बाहर जब भी आएगी मेरे हाथों शदीद नुकसान उठाएगी। अम्मी उसकी बात को लेकर मेरे पास आईं और अम्मी के ही समझाने पर मैंने केस वापस ले लिया, तो नबील ने मुझे खुला दे दी। अम्मी के घर आए हुए मुझे 3 माह हो चुके थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ख्वाबों की इतनी बुरी ताबीर सामने आएगी। मैं हर वक्त रोती रहती और मेरी वजह से अम्मी भी इस बात पर परेशान रहती कि मुझसे तो कोई अब शादी नहीं करेगा। वो मेरी वजह से बीमार रहने लगी तो मैं भी फ़िक्रमंद हो गई कि अगर खुदा न ख्वास्ता अम्मी को कुछ हो गया तो मैं इस घर में अकेली कैसे रहूँगी। और मेरी फ़िक्र में अम्मी को शदीद हार्ट अटैक हुआ। मैं उन्हें लेकर जब हॉस्पिटल पहुंची तो थोड़ी देर बाद ही सलीम भी चचा चच्ची के साथ हॉस्पिटल आ गया। सलीम ने बहुत गहरी नज़र से मेरी तरफ देखा तो मैंने अपनी नज़रें चुरा ली। उसने ही अम्मी के दवाइयों और टेस्ट के हवाले से भाग दौड़ की। चचा चच्ची तो थोड़ी देर बाद ही घर चले गए, लेकिन सलीम मेरे साथ ही रुक गया। मेरे और उसके दरमियान खामोशी के तवील वक्फे आए। ना तो उसने मुझसे कोई बात करने की कोशिश की और ना ही मैंने। वो पहले से काफ़ी संजीदा और बुर्दबार नज़र आ रहा था। फिर वो खामोशी से उठा और बाहर चला गया। जाने क्यों मुझे अम्मी की बातें याद आने लगीं तो मैं रो दी। काश मैं अम्मी की बात मान लेती तो इतनी मुश्किल हालात से ना गुजरती। चचा चच्ची तो अम्मी की वजह से यहाँ आए हैं,
जिस दिन अम्मी ना हुई तो ये लोग तो मेरे साथ बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। मैं दुनिया में किस कदर तन्हा हो जाऊंगी। इस ख्याल के आते ही मैं बुरी तरह रोने लगी कि अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। तो मैंने सर उठाकर देखा तो सामने सलीम खड़ा था। उसके हाथ में चाय का कप था जो उसने मेरी तरफ बढ़ाया। सलीम, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने कपकपाते होंठों के साथ उसे कहा तो उसने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। जो हो गया उसे भूल जाओ, मुझे कोई गिला नहीं। बस इतना याद दिला दूं कि मैं आज भी तुम्हारा रास्ता देख रहा हूँ। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा और अपना सर झुका दिया और दिल ही दिल में अल्लाह का बेतहाशा शुक्र अदा किया कि इस मुश्किल वक्त में उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।